Yes, sir. Thank you, Shaban sir, for your kind words and giving me the opportunity to introduce such an eminent personality of today's web lecture. Once again, I, Sneha Chaudhary, Assistant Professor, Faculty of Education, Karim City College, welcome everyone in this web lecture. I'm here to introduce a person who is a gold medalist and NET JRF in linguistics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She is presently a Faculty of Business Communication and Theatre at Birla Institute of Management Technology, Greater Noida. She has designed and implemented several innovative courses on employability like corporate effectiveness through theatre techniques. Her pedagogical innovation during COVID-19 was shortlisted as an entry at Times Higher Education Award Asia 2021 and reported in Insurance Times and a Commonwealth Insure 2021 reported released by CII UK. In the presence of AICTE Chairman, she recently received India Inspiring Teacher Award and teach in the category Excellence in Innovative Teaching and Learning Practices organized by ASMA and InnoServe Group. She is presently associated with PMO, Government of India, as a translator Hindi-English for Prime Minister as speeches at PIB PM unit. She is also the recipient of Asmita Theatre Group of Growth Icon Award 2018 for academic and social campaign on theatre for change. She was also invited as jury in Green Drama Festival held during 6th India International Science Festival IISF 2020. Her COVID-19 response initiative led by her student has been recognized as Dettol Salute, our protectors by Reckitt Dettol Antiseptic. Apart from her academic and administrative responsibility, she is also passionately working in the domain of enhancing communicative sensitivity by designing and implementing development and empowerment projects in several villages. Some of her engagement were Protsahan Chiraiya, a life skill education program for rural development, rural adolescent girl at Nemka village, UP. Her life story has also been featured in one of the episodes of web series The Girl Tribe, a Facebook community by famous blogger Malini Agarwal, a part of the Girl Warrior series. With this, it's a great pleasure for me to introduce our guest speaker, Professor Saloni Sinha ma'am, who is also an assistant professor, BIMTech, Greater Noida, who is going to talk to us about the innovation and pedagogy of teaching learning process in post-COVID classroom. Ma'am, please come. Good afternoon. I was Shivan sir, you cheated me. मैंने बोला था कि ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप मेल कर दो, because no matter whatever I'm doing, आज मैं सिर्फ एक टीचर के हैसियत से आई हूँ, and that's all you should know. And as I said, you know, ये बहुत ही अच्छा डे होता है मेरे लिए जब मैं सुचेता मैम, शिवान सर, रियाज सर और आप लोग सबके बीच आती हूँ. पिछली बार भी जब आपने मौका दिया था, तो I went back with a lot of things. आज भी मुझे जब बात होती है इनोवेशन की, इट्स नथिंग बट थिंकिंग समथिंग डिफरेंटली, डूइंग समथिंग न्यू. तो ये जो सारे प्रोफाइल में जो कुछ भी सुना आपने, वो इट्स अचीव्ड इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 25+ years. तो आप लोग प्लीज इसको भूल जाओ, क्योंकि वी आर टुडे जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अस, क्योंकि हम टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लर्नर्स भी हैं, एंड द वर्ल्ड रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. तो हमारा बस एक ही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट खुद भी हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहें, एंड द कम्युनिटी विच वी आर. Okay, I can see some little kid over there, सुबुई मैम के पास. या एक्चुअली उस हर एक इंसान जो आपके साथ जुड़ता है, आप उसका वैल्यू इंक्रीज कर सको. सो दैट इज व्हाट वी शुड मीट फॉर. तो मैं आज कुछ बताने, ऐसा कुछ सिखाने नहीं आई हूँ. So I feel happy sharing my experiments. I feel happy sharing the times when I failed,
when I succeeded, क्योंकि ये हमेशा एक टीचिंग कम्युनिटी में ना यंग फैकल्टी जब शुरू करते हैं तो all that they focus on, I'll be very honest and maybe many of you would not agree or agree, I don't know, but ये सच है कि हम एक करियर माइंड में लेके चलते हैं, हम बस एक करियर माइंड में लेके चलते हैं कि 2 years में इतने सारे मेरे पेडागोजी हो जानी चाहिए, इतनी मेरी टीचिंग हो जानी चाहिए, इतना मेरा रिसर्च हो जाना चाहिए और हम इसी में आगे बढ़ते जाएंगे, यही हमारा करियर है. एंड फेयर इनफ, बिकॉज इंक्रीमेंट्स उसी से जुड़े होते हैं. आप 3 साल बाद चाहते हो मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाए, मुझे प्रमोशन भी मिले और मैं एक नॉर्मल लेक्चरर से वन डे आई शुड बिकम द डीन, द डायरेक्टर. तो ये करियरिस्ट होते हैं, ऐसे एकेडमिशियंस जो करियरिस्ट होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. आपका विजन जरूर होना चाहिए टू ग्रो अप द लैडर. बट लेट मी आस्क यू वेरी ऑनेस्टली, और आप प्लीज चैट में अपने आंसर्स मुझे देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना रिसीव कर रहे हो जो भी मैं कह रही हूँ. तो करियरिस्ट कितने लोग हैं? Can I just see in the chat, or you can raise your hands in whatever way, but let me know that you're there and you're listening to me. How many of us are careerists? Shibanu sir says he's a careerist. All of us are. How many of you say you're a Pritam ji says, Pritam ji, Pinky. So I'm reading the names जो यहाँ पर आपके नेम बॉक्सेस में आ रहे हैं. प्लीज अगर आपने किसी और डिवाइस से लॉगिन किया है जो कि आपके ब्रदर, फादर एटसेट्रा का हो, तो प्लीज अपने नाम से यहाँ पर मुझे दिखिए. संध्या ऑल्सो सेज करियरिस्ट. आप लोग you're just entering into a phase where you will learn and then you will grow and you have a career in your mind. आप चाहते हो कि अच्छे स्कूल्स में आप पढ़ाएं एंड आगे जाकर हो सकता है कुछ मास्टर्स आगे करें, डॉक्टरेट करें एंड टीचिंग कम्युनिटी में जाकर वो प्रोफेसर बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, इस तरह का. तो करियरिस्ट होना गलत नहीं है, बट साथ साथ क्या विजन है? व्हाट इज द विजन यू हैव फॉर योरसेल्फ एंड योर स्टूडेंट्स? करियर तो आपके लिए है, बिकॉज दैट विल ब्रिंग यू मोर मनी, that will bring you more acceptance in the teaching community, because आपके papers publish होंगे तो लोग बोलेंगे okay yeah, ये accepted है. जैसे मैं I had gold medal, I had JRF, I had admissions for my PhD in the world's best universities in India and abroad, but do you know, till today I'm not a doctorate. I haven't been able to do that. मैं बार बार कोशिश करती हूँ, बार बार चूकता है. तो कुछ है वजह, नहीं हो पाते. लाइफ के सर्कमस्टांसेस फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत बदलते रहते हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज, मेरा भी बैचमेट्स अभी सारे डायरेक्टर्स हैं, कहीं डीन है, कुछ है, बट आई फील वेरी सैटिस्फाइड सीइंग माई सेल्फ व्हेन आई से मे बी आई एम नॉट अ डीन, मे बी आई एम नॉट अ डायरेक्टर, मे बी, बट द जर्नी दैट आई हैव हैज बीन एन इवॉल्विंग जर्नी. इट हैज टेकन मी फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर. एंड देयरफॉर थोड़ा वैल्यू ऐड तो जरूर किया होगा कि आज मुझे शिवान सर ने, सुचेता मैम ने, रियाज सर ने एक बार फिर आप लोगों के बीच बुलाया. कुछ तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जो दूसरों को हेल्प कर सकें. सो प्लीज कंटिन्यू टू बी करियरिस्ट. मुमताज एंड मेनी ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड. आई विल ट्राई टू टेक योर नेम्स एज मच एज आई कैन. तो मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि करियरिस्ट आप जरूर रहना, बट एट द सेम टाइम हैव अ विजन फॉर डेवलपमेंट, for value-based development of yourself and your students. And the best would be you with your students. Yes or no? Development तो होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, स्टूडेंट का भी होना चाहिए. बट जब दोनों इकट्ठे करेंगे, एक दूसरे को बिल्ड करेंगे, तो इनोवेशंस भी होंगे, क्रिएटिविटी भी होगी, पैशन भी होगा, एंड यू कैन सी इमीडिएट रिजल्ट्स. आपको सामने एकदम अपने रिजल्ट्स दिखेंगे कि मेरा इम्पैक्ट क्या रहा टीचर, एज अ टीचर, ऑन माय स्टूडेंट्स एंड माय कलीग्स. तो इनोवेशन, पेडागोजी, ये सब वर्ड्स आजकल बहुत ज्यादा आप सुनोगे, बिकॉज सडनली वर्ल्ड गेव अस समथिंग लाइक अ कोरोना, अ पैंडेमिक, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों को बोला गया चेंज योर वे ऑफ टीचिंग. आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं कई साल से टेक्नो फ्रेंडली हूँ थोड़ा, तो आई पिक अप थिंग्स फास्ट एंड आई वॉज ऑलरेडी यूजिंग अ लॉट ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर रही थी, एप्स यूज कर रही थी, वीडियो मेकिंग एंड ऑल वाज अ पार्ट ऑफ माय क्लास सिंस मेनी इयर्स, बहुत सालों से. एंड ऑल्सो लर्निंग बाय डूइंग में, थिएटर वाज वन वे ऑफ डूइंग इट, सोशल प्रोजेक्ट्स, ये सब मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, नॉट जस्ट हियर एट बिमटेक बट इन माय प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. तो ऑनवर्ड जर्नी वाज easy.
really not easy. You know why? It wasn't easy. I knew everything, but it wasn't easy because my students were different. है ना, मेरे स्टूडेंट्स जो अभी थे वो अलग थे, उनका पूरा एनवायरनमेंट उनका भी बदल चुका था. So today, if you permit me, I will share a very recent example. And why I brought this example is because this is what took me to Times Higher Education Asia Award nomination. This is what brought me the most recent Inspiring Teachers Award. This is what has created many publication opportunities at very reputed conferences. I'm being invited to speak about it because it was something that I did during COVID. One of the things that I did during COVID. इसके पहले वाली चीजें नहीं, ओनली व्हाट आई डिड इन द लास्ट 1 year, उसमें से एक एग्जाम्पल मैं आज लेकर आई हूँ, मेरी स्टोरी एज अ टीचर लेकर आई हूँ. हो सकता है आप इससे कुछ सीख लो, तो आई ट्राई टू जस्ट ब्रिंग यू इनटू माय क्लासरूम एंड गेट अ फीडबैक फ्रॉम यू. एक चीज बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन डेक, एक चीज बस बताना चाहूंगी. जब बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना कुछ क्राइसिस आती है. मेरे यहाँ पे पावर कट हो चुका है एंड आई एम ऑन हॉटस्पॉट, तो अगर बीच में कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट लैग हो तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. स्टे ऑन, आप कनेक्टेड रहना. I'll be back as soon as the internet is stable. I'm running on my hotspot. So yeah, I can see a lot of people have joined in. Pardon me, मैं हर एक का नाम लेकर तो नहीं बात कर पाऊंगी, but मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत ही इंटरैक्टिव रखूं इस सेशन को. So I will ask you all. मैंने देखा बहुत लोगों ने हैंड भी रेज किया, but now this time आपके रिस्पॉन्सेज मुझे आपके चैट में मिलने चाहिए, या फिर आप चाहो तो अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं हम सबसे. Are you all with me? Say something. Yes or no? Are you all excited to know what am I going to bring ahead? Yes, ma'am. अच्छा, नींद से जागे हुए हो सबके सब? क्योंकि दोपहर का वक्त है, बारिश का मौसम है, तो जाहिर है दोपहर के टाइम को ग्रेवयार्ड सेशन बोला जाता है. इस समय नींद आती है, तो मैं नींद से जगा सकती हूँ. आप सबको जगा रखा है शायद मैंने. ओके, वंडरफुल, सो स्वीट ऑफ ऑल ऑफ यू टू बी विथ मी जस्ट नाउ. आई एम सो ग्लैड एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड. Wonderful. Please, okay, those are instructions for the teachers. If you can switch on your camera, it will be great because face-to-face interaction हमेशा बहुत अच्छा लगता है. Okay, wonderful. अब आप, I'm taking you back to the year 2019. है ना, pre-COVID days. I'm taking you there. In one word, can you describe your student? आप उस समय एक स्टूडेंट 2019 में कैसा था? किस तरह के उनके टेम्परामेंट थे, या कैसे उसकी लर्निंग टेक्निक्स थे? आप कुछ भी इस तरह का रिस्पांस मेरे चैट बॉक्स में डालिए, मैं उसको पिक भी करूंगी, और या अनम्यूट करके बोलिए. 2019 जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो कैसे थे? बिकॉज आप लोग सारे आगे जाकर पढ़ाने वाले हो, तो स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है. या Where were they learning from? उनकी लर्निंग कहाँ से हो रही थी? Yes, पुष्पलता जी, unmute and speak, please. You can unmute and speak. Remember, we are with each other, so yeah, we'll try to make it very, very valuable for everyone. हाँ, बोलिए. आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने you raise your hand. और भी कोई बोलना चाहता है? It was a mixture of environmental and classroom learning. ये दोनों चीज मिक्स थी एक तरह से. Okay, so basically students were learning in the classroom. So classroom learning or face to face. बीना जी, thank you so much for your response. 2019 के जो हमारे स्टूडेंट थे वो क्लास में आते थे, टीचर अपनी तरफ से कुछ कंटेंट लेके जाते थे और स्टूडेंट उसको कंज्यूम करते थे ड्यूरिंग अ क्लासरूम फेस टू फेस लेक्चर सुन के, और उसके बाद वो उनका एक टेम्परामेंट रहता था कि उनको असाइनमेंट दे दो, वो बाद में उसको पढ़ेंगे फिर से. एंड सो दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग. What else? Jagdish ji, you said experience. So you think the students were experienced? Yeah, experiential learning. What are you trying to say? If you can unmute and speak. No, ma'am. They used to learn from experiences. Students used to learn from experience. Okay, nice. Thank you so much. और भी कोई response अगर बोलना चाहे, या I'll take 1 or 2 more because we can't keep doing this. ठीक है. So we all know that हम भी as a teacher क्या करते थे?
as a teacher? Yes. Anybody else? Pushpalata, your hands raised again. Okay. I'll keep looking at the hands and I'll try to get you in my conversation. Fine. अब आप बताओ, जब स्टूडेंट क्लासरूम में आते थे, उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन से लर्निंग होती थी, तो टीचर कैसा होता था? टीचर के क्या स्किल्स होने चाहिए थे उस टाइम? कैसे थे? How were they delivering? How were they making sure that the students were learning? You can type it in the chat to save time. As many people on chat. Students, you're requested to switch on your cameras. It's a very typical instruction which comes during. Never mind. Okay. So yeah, I was asking, and you need to put it on chat or you need to speak. Teachers फिर उस समय कैसे पढ़ा? 2019 के teachers, as they were observing students' expressions, Rahi has said, and tools क्या थे? What were the tools? वो क्या इस्तेमाल करते थे teaching? How were they delivering the content? They were using blackboards, okay? Whiteboards, blackboards, blackboard. Okay, so it was a chalk and talk method, Pallavi says. Lecture method, chalk. तो conversations होते थे, right? Conversations होते थे, तो directly आप देख पाते थे feedback students के ऊपर आपकी teaching का क्या असर हुआ. कोई क्लास में अगर अभी कोई सो गया तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट अगर क्लास में कोई सो जाता था तो हम उसको उसी वक्त जगा देते थे कि look, you know, you need to talk. And other than that, we had PowerPoint presentations. So 2019 we were already using some technology, right? But not the way we are doing now, because now that's the only medium to connect to the students. और कोई एक दो inputs आना है तो okay, yes, Swati, chalk, fine. Now for some time you will have to see my experiment, and after that I'll again open up the session for some discussion. तो 2019 के टीचर थोड़े थोड़े जिसको अच्छा लगता था वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटीग्रेट कर लेते थे, पावरपॉइंट बना लेते थे, वीडियो ले आते थे क्लास में. मेजरली इट वाज अ lecture method, chalk and talk method. Nowadays there has to be a huge transformation, and it has happened. COVID made it happen. We started embracing technology, and we were after classes for reinforcement we would give them, you know, PowerPoint slides दे देते थे, notes दे देते थे, and उनको assignments दे देते थे, और उनसे फिर वो subjective you know evaluation करके judge कर लेते थे कि हमारी teaching का उस पे कितना असर हुआ, और फिर एग्जाम होता था तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते थे. योर स्टूडेंट्स वर आल्सो वेरी कंप्लेसेंट कि आज क्लास में सुनो मत सुनो कोई बात नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले मैं मेरे फ्रेंड्स से नोट्स ले लूंगी या मेरे टीचर से पेन ड्राइव ले लूंगी और मेरा एग्जाम में पास कर जाऊंगी और मुझे 9 on 10 मिल जाएगा और मैं एक एक्सीलेंट स्टूडेंट कहलाऊंगी, एंड दैट विल टेल एवरीबडी आई एम अ लर्नड पर्सन, कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ. Yes or no? Say yes. Y for yes. Say N for no. ऐसे थे ना हम लोग as a student. Absolutely. So, अब आप बताओ as a teacher, अब ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. टीचिंग टूल वोल तो सीख लेंगे, तरह तरह के हम लोग डिजिटल नेटिव्स बन चुके हैं, डिवाइसेस स्मार्ट आ चुके हैं, हम लोग मजे से यूज कर लेंगे. बट माइंडसेट कैसे चेंज करें? माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे कि एग्जाम के समय तुम पीपीटी दे दो और एग्जाम पास हो जाओ, उससे नोट जेरोक्स हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे. मार्क्स ही मेरे लिए इवैल्यूएशन है, मार्क्स ही मुझे बताएगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, राइट? सो माय डियर, all of you, this teaching community, you have to understand that it is not a challenge of embracing new tools and technology in your teaching, but it is a bigger challenge to understand the psychology of your learners and also us, jo within a year itna badal gaya. Yes, so I'm very happy to see many of you have responded. Please continue this, to mujhe acha lagega. You know, I'm nearly 50, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन मुझे सुन रहा है, तो वैसी वाली फीलिंग आती है ना कि ओल्ड जनरेशन को कोई सुनता नहीं है, एक शिकायत सी हो गई है. बट
You can do things together, unimaginable achievements you can if you look up to those seniors who can give you so much of wisdom. So thank you for participating in the chat. Allow me to share, if anybody has something to say, for a few minutes we can have some conversation while I am ready to share my screen. As I said, ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट है जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ, इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया जब इसकी बहुत चर्चा होने लगी, कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी, और साथ साथ ये ग्लोबल लेवल पे भी इसको लोग बहुत इससे अट्रैक्ट होने लगे और मुझसे पूछने लगे कैसे कर रहे हो, क्या किया और क्या सीखा. So that's why I'm going to bring this. Any one or two comments you have while I'm sharing the screen so that we can talk a little while this happens, sharing happens. I might play some small videos in my presentation, so I would like you all to tell me. Okay, gladly my internet is back, electricity is back. Congratulations. So as I was saying, last February, all of a sudden pandemic happened, and all of us, the teacher and the learner, we both were inside our homes. Somebody has access to internet, somebody doesn't. Somebody has to finish the course because it was middle of the trimester. All of a sudden, you all had all kinds of work to be done, but from home. So in the midst of all this, this is what happened to the teacher. Is it clear on your screen now? Yes, ma'am. Wonderful. Now you tell me, please engage with this image for about 30 seconds and let me know कि आपने इनमें से कुछ चीजों में नया क्या किया खुद के लिए, as a learner, as a student, as well as a teacher. तो मेरे पास ये responses ऐसे आने चाहिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है तो मैंने गूगल ड्राइव सीख लिया, कैसे अपने क्लाउड पे रखते हैं, इस तरीके के चीजें क्या किया आपने. शिबान सर का मुझे पता है, वो बहुत ही क्रिएटिव पब्लिशिंग कर रहे हैं आजकल, वो वीडियो लॉग्स बना रहे हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं. एनीबडी प्लीज, वेब एक्सेस में क्या नया पिक किया स्किल? We learn new technological methods of teaching. Yeah, technology in terms of web access. Like for example, we were simply just thinking internet means browsing for information. But then we started looking for apps where we were like, teaching through how to make like Bluetooth नहीं आता था तो Bluetooth सीखा ताकि हम internet sharing सीखी. How did we make ourselves available through various net platforms and etc. etc. Tell me honestly, how many tried to build a new paradigm? And if you did, you share your experience. We learned a lot during this pandemic. For example, Google, we learned how to use Google Classroom and share notes. Okay, I sorry to interrupt, but I moved ahead. Web access and tools related to आपने किया. My question is, new paradigm build करने में आपने क्या नया किया? Paradigm change किया ना अब हमने. What did you do new in that? You know what paradigm is? जैसे कि पहले का टीचिंग मेथड कुछ था चॉक एंड टॉक, अब हम उसको नए सिरे से कुछ सेम टॉपिक को हमको नए सिरे से पढ़ाना है. सिर्फ पीपीटी यूज नहीं कर सकते, नोट्स हम उनको व्हाट्सएप इमेज करके भेज देते हैं, व्हाट्सएप टीचिंग स्टार्ट कर दी, या रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ और किया, या क्वेश्चन आंसरिंग का पैटर्न हमने कुछ और कर दिया. Paradigm teaching instead of talking, the whole delivery was different. Important changes आया है. Storytelling method और video feeds of delivering. Let's say physics पढ़ाने वाले ने नया storytelling क्या किया होगा अपनी क्लास में? या तो होगा. Do you know that maths is being taught through storytelling? Anyway, that's an exploration we can carry forward. अच्छा, एक क्वेश्चन अब 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में है. आप एक टीचर हो जो आप ऐसी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हो जो आगे जाकर उस इंडस्ट्री को फीड करेगा अपने स्किल्स के साथ. जो स्किल उनको चाहिए वो स्किल आप में नहीं था. लेट्स बी अगेन वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी तक हमारा वो एनवायरमेंट ही नहीं था. तो टेल मी वन थिंग, एज अ टीचर, हाउ मेनी ऑफ अस
looked at important reports, latest information coming from the ministry or otherwise, जो बताता हो कि ये आने वाले फ्यूचर स्किल्स होंगे और हमारी क्लास में ऐसे ही स्किल्स हमें स्टूडेंट्स को देने हैं. How many of you read something like this, and how many of you developed a curriculum around it? Few, maybe one, maybe two, maybe none, है ना? So eventually, to be very honest, one or two of us may have done so much. One or two in millions, by the way. However, now this is a norm. Now we are at home, and now this is a norm. I can't say I cannot make blogs, I cannot make video, because you have to. For that, you'll have to make, new content in a fresh way. But a content which the current generation wants. So as a teacher, अगर मेरी क्लास ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे है तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके पढ़ा दूंगी. अगर वो ज्यादा व्हाट्सएप पे टाइम दे रहे हैं तो मेरी क्लास व्हाट्सएप पे चलेगी. Learning is important. How you deliver that, how you achieve that is entirely in the hands of the teacher. So break the norms, do what is required, not what has been happening. So teachers, young teachers who will in future be teaching, and also us. As I said, I'm almost 50. But if I don't become that kind of a teacher for this future batch of students that I have, मेरे को तो reject कर देंगे as a teacher, right? Okay? So yeah, so this is the reality all of a sudden. हम लोग आज भी ये struggle हमारा जारी है. शिवान सर और काफी दूसरी faculty आपको बार बार याद दिला रही है, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो. There's a lot of distracting elements during teaching. Plus कोई लेट के सीख रहा है आपसे, कोई दूसरी मीटिंग के साथ साथ आपकी क्लास में है, कोई खाना बनाते बनाते आपकी क्लास अटेंड कर रहा है, किसी की सिर्फ नाक दिख रही है, किसी का बैठने का ढंग गलत दिख रहा है. इस सब के बीच आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है और हमारा फोकस क्या होना चाहिए? Learning should be ensured. Method can be whatever you want. Let's see whether that's possible. So are we on the same page? Are you all happy listening to this? And shall I go ahead? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So now हमने ये तो देखा कि हम टीचर का क्या स्ट्रगल है. आपने देखा कि स्टूडेंट का क्या स्ट्रगल है? Did you realize कि स्टूडेंट का क्या स्ट्रगल है? Did you sit down and try to understand that the one I'm delivering bringing behind? Let me just quickly address that. This is the problem. Data shortage. Yes, digital accessibility itself. कितने बच्चे हैं? हाँ. Yes. So digital divide is something. Yeah. सुबह से लेके शाम तक एक ही तरह से पढ़ते रहना, बैठ करके सुनते रहना, मतलब इट्स लाइक लोग होते उस सिचुएशन में. आई वुड हैव गिवन अप. लाइक इतना एक्सपोजर मोबाइल का और सुनते रहना इज लाइक कैन बी टेरिबल. Yeah. So you know what? आप बोलते हो कि क्या होगा, कैसे हम पढ़ाएंगे, किस तरह से हम एड्रेस करेंगे. आप देखोगे आपके स्टूडेंट्स के क्या हाल हैं, है ना? आप देखो कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके बुक्स उसके पास नहीं है, उसके पास जरूरी नहीं कि लैपटॉप हो, है ना? उसके पास फोन है छोटा सा, उसके पास फोन नहीं भी है. कई अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, है ना? तो पैंडेमिक आया, टीचर ने अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि हमें ये सब सीखना है. चैलेंजेस भी टीचर्स ही अपनी बात बता रहे थे, बट वेरी फ्यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के क्या हाल हुए. एंड दिस वाज द रियलिटी, इजंट इट? एक तरफ पैंडेमिक, आइसोलेशन, डिस्टेंसिंग, fear, anxiety of the unknown. We didn't know what was happening. Second wave में तो जो हाल था, and मैं एक वॉलंटियर रही हूँ तो मैंने बहुत क्लोजली बहुत तरह की चीजें फेस की, हैंडल की लोगों के लिए. डिजीज था, ओवरऑल माहौल बहुत ही हर आदमी को मेंटली डाउन करने वाला था. So there were lots of challenges. There
there was so much happening. So as I said, ये story मेरी है और मेरे क्लास की है. तो मैं पढ़ा रही थी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स को. मुझे मालूम था कि किसी के घर में सारे कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, किसी के घर में डेथ्स हो चुके हैं, कोई और किसी सिचुएशन में मेंटली अनस्टेबल हो रहा है. ऐसी क्लास थी. तो मुझे लगा कि अब मैं इनको कैसे पढ़ाऊं और जो मुझे पढ़ाना है कैसे पढ़ाऊं. तो मुझे लगा कि एज अ टीचर एक ही चीज मैं कर सकती हूँ, और वो ये है कि सबके पैंडेमिक जो फटीग आ चुका है, जो अभी शिबान सर ने जस्ट बोला कि फटीग आ चुका है, मोनोटनी आ चुकी है. रिसर्च ऑल्सो सेज देयर आर वर्ड्स लाइक इन्फोडेमिक था. हर आदमी न जाने क्या क्या व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, और ओवर एक्सपोज हो रहे हैं हम लोग. मेडिकेशन बोलो या न्यूज ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड trauma and everything. Excess overload. Pandemic fatigue was real. Infodemic, pandemic के साथ साथ infodemic was real. Infobesity, बीमारी है ना, obese हो जाना, extra fat in your body, unnecessarily bulge. Same way, अगर excess information हो जाता है तो आपका फिजिकल हेल्थ जैसे ओबेसिटी में खराब होता है, वैसे इन्फोबेसिटी में आपकी रैशनल थिंकिंग अफेक्टेड हो जाती है. यस और नो? यस मैम. सो देयरफॉर एज अ टीचर, ना मुझे मेरा सब्जेक्ट क्लास में लेकर जाना है, ना मुझे ट्रॉमा उनको बार बार याद दिलाना है. मुझे करना क्या है मुझे नहीं समझ में आया. तो ऑल ऑफ अ सडन एक ही चीज मुझे समझ में आई. ऑल दैट आई नो इज आई हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ लव इन माय क्लास, a lot of care, a lot of empathy, a lot of understanding, supportive behavior. अब वो टीचर जिसका method of ensuring learning was punitive, कि अगर तुमने नहीं क्लास अटेंड की तो अटेंडेंस -5, उस डर से बच्चा क्लास में आता. या एक टीचर ऐसा जिसको आदत है कि वो स्टूडेंट्स को बहुत पुश करे कि नहीं, एक असाइनमेंट क्यों, आपको 2 करके देना होगा. और डेडलाइंस के लिए जैसे हम बोलते थे कि 3 घंटे के अंदर 2, अब हम नहीं बोल सकते थे, हमको 3 दिन भी देना पड़ सकता था. तो एज अ टीचर स्टूडेंट कनेक्ट जो होना चाहिए, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको कंपैशन लाना है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट. So if I was planning new technology in my class, if I was planning many new topics, many new styles of teaching, I'll show how to integrate technology, apps, this, that. Sorry, वो सब fail अगर आप अपने course delivery में compassion नहीं लाते हैं, humanity quotient नहीं लाते हैं, और आप उनसे communicate इस तरीके से करो. listening, बहुत सारे teachers होते हैं, they are one way in their delivery, like they will deliver what they have to do and that's about it. They will not go back and connect with them later to know. उनको लगता है नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए. So teacher has to change. Therefore I said tools, technology एक side, वो तो सीख ही लोगे, करना ही है, वही तरीका है. But mindset change करना है of the teacher as well as of the students. So what is your comment? Any two of you can say, what do you have to say? Was I doing it right? Definitely मैम. Okay, so subject में भी आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स इंटीग्रेट करने होंगे डिलीवरी में, ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे एनालॉजी लाने होंगे कि पैंडेमिक के जो नेगेटिव चैलेंजेस, नेगेटिव बातें थी, वो भी डिस्कस हो, क्योंकि सोल्यूशन हमको उसका लाना है, साथ साथ उसको इस तरीके से डेवलप करें, है ना. तो मैं आपको मेरी क्लास के एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, एंड मुझे यही विनिंग पॉइंट रहा मेरा in my class, that I did not bother about the tool, technology, this and that. 2 things I did. One was, all I knew was I had to be considerate. And 2, I had to teach them the way they want to learn. I want to know how do they consume knowledge, and I will try to bring that into the class. So my story begins from here. This is what I did. And ये था सिचुएशन, जॉब लॉस. अब मेरे 20 स्कूल के स्टूडेंट हैं. इन्फोडेमिक और शैडो पेंडेमिक ऐसी 1-2 चीजें हैं जो हम सबको पता है कि ड्यूरिंग इलनेस कॉज्ड बाय कोरोना, सुसाइड्स बढ़ गए, वायलेंस बढ़ गया घर घर में, जॉब्स के जाने से रीजन था, जॉब्स के जाने से मेंटल केओस बहुत ज्यादा था.
And not only the corona, I was, touch wood, God's grace, not affected by corona, but I was affected by all these things. So we cannot ignore कि ये सब के बीच आपको course deliver करना है ना? So let's be very honest, read, get information, latest things, talk to them. They are young people, उनसे पूछो कि आप बताओ, you know, ये चीजें हो रही हैं, हम क्या करें? फेक न्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताओ कि आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या कर सकते हो. टॉक टू द ह्यूमन, नॉट द स्टूडेंट ऑफ अ सब्जेक्ट. टॉक टू द ह्यूमन. Okay, and that's how you will develop connect. Then what happened? I found that during the pandemic, this is what was working. Many people started talking about क्या क्या खाना बनाया, नया आर्ट क्या लेकर आए, किसी का गाना आप पहली बार सुनने लग गए, किसी को आपने देखा कि वो फैमिली के साथ गलती से मेरी हाथ लग गई. हाँ, सो आपने देखा ना कि पूरे उस फेज में ओके या सो आपने देखा ना कि पूरे उस फेज में आई जस्ट फ्रीज दिस. हाँ, सो आपने देखा उस पूरे फेज में आर्ट प्लेड अ वेरी बिग रोल. आपने देखा होगा फैमिली भी मिलके पेंटिंग कर रही है, गेम्स इंडोर खेल रहे हैं. तो मैंने उस समय एक चीज रियलाइज की कि सारे लोग को कुछ ना कुछ लाइटर वे में कंटेंट पहुंच रहा है, तो वो जल्दी उससे एंगेज हो रहे हैं. So that was the time I realized बहुत सारे apps आ गए, एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस की लोगों को हैबिट होने लगी, विजुअल ज्यादा कंटेंट शेयर होने लगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाए, यूट्यूब पे भी चला जाए, पिंटरेस्ट पे भी चला जाए, सोशल मीडिया पे भी ऐसा एक कंटेंट. और फिर ये भी देखा कि मेम्स बहुत बनने लगे, ह्यूमर बहुत यूज होने लगा, और इस तरीके से वी फाउंड दैट all of us were learning more through art, and we were sharing information through visual communication more. और शिबान सर ने बोला स्टोरी टेलिंग. अब जो प्रोजेक्ट था कॉमिक बुक का, ये कॉमिक बुक का कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ अ सडन हर जगह आप देखोगे कैरिकेचर्स बन रहे हैं, बट अपनी भी कैरिकेचर बनाकर लोग डीपी लगा रहे हैं, या कॉफी मग्स में वो बना रहे हैं, अपनी कैरिकेचर्स बन रहे हैं. कार्टून मेकिंग बिकेम अ रेगुलर थिंग. आपके बहुत सारे एप्स आ गए फोन्स में, जिससे आप तरह तरह के ग्राफिक्स बनाने लग गए. और ये गेम जो था, हर कोई ऐसा करने लगा. So I thought that now this is the way I want to teach my subject. My subject was business communication. The module was cross-cultural learning. Cross-cultural मतलब मुझे 2 countries across the country मुझे वो उनको सिखाना था. और साथ साथ मुझे ये भी उनको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये लगी, लेट मी मेक देम कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट पैंडेमिक, क्योंकि बहुत लोग बात ही नहीं करना चाह रहे थे. उनको लग रहा था बार बार किसी का मरना, किसी की बीमारी, हम ऐसी बातें क्यों करें, बार बार क्यों करें, मेरे घर में हो चुका है, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे बार बार एक ही चीज सुनना पड़ रहा है. एंड मेरे स्टूडेंट्स तो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, उनको मार्केटिंग क्लास में भी बोला जा रहा है कि पैंडेमिक के बीच आप क्या करोगे. इंश्योरेंस के बच्चे बोल रहे हैं पैंडेमिक के बीच आप पॉलिसी में क्या नया चाहते हो. स्ट्रैटेजी पढ़ाया जा रहा है, तो भी पैंडेमिक आ गया है, तो बिजनेस को कैसे आप रिवैम्प वापस लाओगे, बाउंस बैक कराओगे. रेजिलियंस की बात करें तो हर क्लास में पैंडेमिक डिस्कस हो रहा था. तो मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए पैंडेमिक डिस्कस. फिर मुझे लगा अगर मैं नहीं करूंगी तो कम्युनिकेशन तो उनको हर जगह पैंडेमिक का कुछ ना कुछ करना होगा. So therefore, in my subject, in the cross-cultural module, I designed an assignment which was creative, which was involved, in which students would be involved in visual thinking, और उनको ये learning भी करानी है जो भी modules था. तो obvious था कि 130 students थे, है ना. I'm so sorry, आज कुछ ज़्यादा ही chaos हो रहा है. Let me just go back in this way. Yeah. तो मैंने वो डिजाइन किया एक असाइनमेंट which was about cross cultural topics, and उसको मैंने पोस्ट कोविड-19 स्किल्स जो इंडस्ट्री मांग रही है, वो मैकेंजी रिपोर्ट था लेटेस्ट, फंडामेंटल स्किल्स फॉर करियर एडवांटेज, उसमें से मैंने ये वर्ड्स पिक किए
विजुअल थिंकर्स चाहिए, उनको क्रिएटिव थिंकर्स चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स चाहिए, रेजिलिएंट लोग चाहिए, क्यूरियस लोग चाहिए, रिसर्च कर सकें, स्पेशियल लर्निंग मतलब लेआउट को कैसे वो प्लान कर सके, कोलैबोरेटिव, रिमोट कोलैबोरेटिव होने चाहिए, और इस तरह के उनको स्किल्स का उस रिपोर्ट में लिखा गया था जो लास्ट ईयर अगस्त 2020 में पब्लिश हुआ। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने क्या किया, उनको एक असाइनमेंट बनाकर दिया जिसमें उनको कई कंट्रीज दिए और इंडिया वर्सेस सार्क कंट्रीज, पिग्स कंट्रीज, OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इस तरह के उनके ग्रुप्स में मैंने असाइनमेंट दिया, इंडिया वर्सेस सम कंट्री। उनको जो थीम्स दिए वो कोरोना के टाइम के चैलेंजेस थे, जैसे कि फेक न्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, सुसाइड एटसेट्रा, और इंटरजेनरेशनल बॉन्ड, और उनको लॉस ऑफ बिजनेस लाइक थिएटर, ये सब ये मैंने इसमें इंटीग्रेट किया और उनको बोला कि आप कहानी बनाओ और आप कैरेक्टराइज करो और ये दोनों कंट्रीज की स्टोरीज डेवलप करो। और इसी तरीके से मैंने उनको 4 मॉड्यूल्स एक साथ रिवाइज करा दिया। ये एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर का असाइनमेंट था, लास्ट असाइनमेंट था। तो उसमें 4 टॉपिक्स क्या थे? बेसिक प्रेजेंटेशन स्किल्स, विजुअल थिंकिंग जो कि मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स में पढ़ाना ही पड़ता है, इमेजिनेटिव माइंड होगा, क्रिएटिव होगा तो स्टोरी टेलिंग तो सीख ही जाएंगे, प्लस उनका जो टॉपिक था उसका मुझे उनकी लर्निंग का पता चला। ये कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कोई किसी ने इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया कि ऐसे पढ़ाओ, पर मैंने उनको पढ़ाया भी नहीं, बट मैंने उनको ये टॉपिक सिखा दिए। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं बताया साक क्या है, ओपेक क्या है, मैंने नहीं बताया कि क्रॉस कल्चरल थियोरीज में ये कैसे बोलते हैं, ये रेजिलियंस कैसे मेजर करते हैं, पर उन्होंने इस एक्टिविटी को की और उससे उन्होंने ये सब सीखा। तो एज अ टीचर, डोंट टीच बट मेक देम लर्न। Don't focus on your teaching. Focus on how they will learn what you have gone in for the class for. That is why लोग एक word बहुत अब आप सुनोगे, लोग कह रहे हैं all of us should know about intentionality. Please note this word. Intentional होना पड़ेगा आपको कि अगर क्राइसिस आया तो उस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी है, उस क्राइसिस को मैं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी लूं, उसी से मैं अपना नया रास्ता चुनूं। So be an intentional teacher or an intentional learner and not somebody who will break down when there is a crisis. So this is a synonym, actually words resilience के साथ साथ अब intentionality की बात हो रही है। इसको तो खैर बाद में भी you can ask someone to come and talk to you about intentionality, but that is the new way of working. Crisis में टूटना नहीं है, क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी लेके ऊपर उठना है और एक नया, बिल्कुल नया लर्निंग उसको प्लेटफॉर्म बनाकर सबके सामने लाना है। सो आई रिपीट, एज अ टीचर एंश्योर द लर्निंग नॉट द टीचिंग। दैट इज व्हाट आई डिड। एंड देन ऑफ कोर्स 130 स्टूडेंट्स, एक सेमेस्टर ऑलरेडी खत्म होने वाला था, लास्ट असाइनमेंट था, कभी किया नहीं था, बट ऑब्वियस है कुछ आपको सपोर्टर्स मिलेंगे और कुछ आपको रिजेक्ट कर देंगे, इंक्लूडिंग योर पीयर, योर ओन कलीग्स। अब क्या करें, क्या करना चाहिए था मुझे इसके बाद? नाउ आई वुड आस्क यू ऑल, बहुत देर से मैं ही बोल रही हूँ। मेजरली स्टूपिड बोल रहे थे, ये यार क्या है, ऐसा लर्निंग मैम ने क्यों मुझे, हम लोगों को ऐसा टाइम में इतना ऐसा असाइनमेंट दे दिया, 4-5 जगह हम अलग अलग हैं, कैसे होगा, क्रिएटिव वर्क है, स्टोरी टेलिंग कभी नहीं की है, कार्टून तो कभी बनाया ही नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ सपोर्टर्स भी मिले, है ना। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? लेट्स टॉक क्विकली, 1 or 2 पीपल। मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक, एज अ टीचर गिव अप। Yes, I'll stop sharing so that I can talk to you all for a quick few minutes because I know कि अपने पास let me put it on full screen. Yeah, tell me, क्या करें? एज अ टीचर मुझे क्या करना है? अब एक मेजरली ये जो नो बोल रही थी, ये CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग आते हैं टीचर के पास, सॉरी मैम क्लास नहीं करना चाहिए। तो एज अ टीचर मुझे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? We cannot give up. We can support the students. जो भी support है you can take from them. अगर 130 में
128 स्टूडेंट्स नो बोल रहे हो और आपकी कॉलेज का ये हो कि वो सीधा चेयरपर्सन को जाकर बोल सकते हैं या डायरेक्टर को जाकर बोल सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, 10 दिन बाकी है, हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ये लास्ट असाइनमेंट है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैम ने बहुत असाइनमेंट दे दिए थे, ये नहीं करना है। 130 स्टूडेंट्स, अब आप बताओ, गिव अप और हाउ डू यू परसुएड? अब आप कहाँ स्टूडेंट्स का सपोर्ट कैसे मोबिलाइज करोगे? वेरी इजी ऑप्शन है कि 2-4 स्टूडेंट आएंगे, वो आपको बोलेंगे हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं और आप डर भी जाओगे। अर्ली करियर में ऐसा होता है, यू विल फील स्कैर्ड, यू विल फील लाइक छोड़ो यार, छोड़ देते हैं, बच्चे खुश रहने, स्टूडेंट शुड बी हैप्पी, बाबा मेरा तो करियर है। हाउ डू यू मोटिवेट देम मौसमी? हाउ विल यू मोटिवेट देम? देखा आपने मेरी स्लाइड में एक ग्रुप, एक लड़की थी जो 128 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो बोल रहे थे नहीं करना, और 2 ऐसे थे जो रेडी थे करने को। इन सम क्रिएटिव वे, डॉक्टर संध्या, व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू? आप क्रिएटिव वे का स्कोप कैसे आएगा? पहले अभी तक तो हम लोग मतलब स्टूडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन गई है थ्रू द सीआरस कि क्लास में ये असाइनमेंट आने वाला है। You can show some demo like इस तरह से, और different चीजें दिखा करके कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं उनको दिखा दूं, एक मिनट, नहीं मतलब एक आइडिया दे दो कि सो दैट कि मतलब कि दे विल एटलीस्ट ट्राई। ओके मैम, अगर मैं उनको एक हिंट दे दूं तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं उनकी क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी। उसका रीजन, कॉपी पेस्ट। जो सोशल मीडिया और जो हम इंटरनेट लाइफ में आ चुके हैं, द बिगेस्ट रिस्क एंड द रीजन व्हाई क्वालिटी इज नॉट गेटिंग अचीव्ड इज वी आर सो मच इनटू गेटिंग इंस्पायर्ड, दैट इज टेकिंग समबडी एल्सेस थिंग। अपने आप से ओरिजिनल चीजें नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको तुरंत इंटरनेट पे सोर्स करते हैं, उस जैसा कुछ या वही उठा लाते हैं और असाइनमेंट में डाल देते हैं और ओरिजिनलिटी नहीं अचीव कर पाते। हमारा इंटेंशन है creative, original, and it's true, the hint is in my slide itself। हुआ ये था, how do you get the support of people, motivate them to do what is right? I'll tell you what happens। आपकी टीचर ना, आपका एक ऑरा होता है, आप yes I'll hear you in a few minutes। हर टीचर का एक ऑरा होता है, हर टीचर के कुछ फॉलोअर्स होते हैं, है ना, होते हैं ना। Excuse me, मैम। Yes, संध्या मैम, बोलिए। मैम, मैंने लिखा है कि we can choose some leaders from their group, Yeah, and exactly. then we should convince them, and they will do your work between। Okay, I'll just reword it. I'll reword. आपने जो बोला मैं बस उसको थोड़ा सा differently बोल रही हूँ। I will be out of the picture. I as a teacher will be out of the picture. I will say कि ये रहा असाइनमेंट और ये करना है। आपके स्टूडेंट्स आपको एंडोर्स करेंगे, ये बोलेंगे स्टूडेंट्स को कि हमें ये करना है, नॉट बिकॉज टीचर ने ये बोला है करना है, बट हमें ये करना है। सो यू शुड हैव सम चीयर लीडर्स विद यू, बट नॉट दोज जिसको जनरली क्लास बोलेगी ये टीचर का फेवरेट है, इसको ज्यादा मार्क्स इसलिए मिलते हैं, वैसे वाले नहीं, जो आपकी आइडियोलॉजी को एंडोर्स करे, राइट? सो व्हाट हैपेंड इन माय क्लास, आई हैव मेनी प्रोजेक्ट्स दैट आई हैंडल। तो 2 बच्चे मीडिया के थे, मीडिया टीम के, वो मेरे साथ थे। तो उन्होंने बोला कि जब एक ने बोला नो, जैसे सीआर है, वो आकर मुझे बोला कि सॉरी मैम कोई नहीं करना चाहता, 2 ने आकर बोला कि ऑफ कोर्स हमें करना है, और मैं इस पिक्चर में नहीं थी। अब ये कंपटीशन इन 2 लोगों में था, एक जो नो बोल रहे थे और एक जो यस बोल रहे थे। इनको एक दूसरे को बैलेंस करके मेरे तक यस लाना था। दैट वाज द चैलेंज। I will not cancel the assignment. I will not give you any samples because that's not the purpose. Because आपको खुद से बनाना है, खुद से सीखना है, खुद से create करना है। Creativity should not be copied work. Creativity is good, bad, whatever, but आपका original thinking, and that was my main intention. Okay, so teacher, after a decision is taken, should be out, and it should be in a way that your students start endorsing you. That is your success, and that is what should happen during COVID. The classroom has become such जिसमें
पैरेलल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, खूब सारी उसमें बैक एंड फोर्थ मैसेजेस होते हैं। एक टीचर के साथ ग्रुप है, एक क्लास का ग्रुप है, एक कैजुअल ग्रुप है, एक तो ये लोग पूरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं वहां जो आपको नहीं पता होता. You as a teacher should not enter that conversation because you will lose respect. Stay with your decision, no matter how tough it will be in the beginning, but when the outcome is here for others to see, everybody will feel excited. तो मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन को. प्लीज कंफर्म वेदर यू आर एबल टू सी. एंड ऑल्सो बिकॉज ये सब्जेक्ट बिजनेस स्कूल का है, मैं बार बार ये बोलूंगी, हमारे मोटिव्स डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू योर रेगुलर स्कूल टीचिंग. बट एज आई सेड, इवन लिटिल चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल 3 to 4 years के बच्चे भी अगर आपके स्टूडेंट हैं, वो भी आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं. आपके आइडियोलॉजी को एंडोर्स करें. डू नॉट गैदर फॉलोअर्स हु विल पास ऑन योर नोट्स. You gather followers who will pass on your ideology in the next generations, not your notes. So burn your old notes. As a post-COVID teacher, burn your old notes. Do it freshly and do it where the students are. Do it with that level of exposure. तो छोटा बच्चा भी, अब आप ऐप देखो, आपसे बेटर तो वो कर लेते हैं एप्स पे काम. तो मैंने उनको बोला अब आप एक्सप्लोर करो और एक्सप्लोर करो और आप इसी को आगे लेकर जाना है, तो आपको ये करना है. आपके पास 10 days है. सो बट ऑब्वियस, एज आई सेड, द चैलेंज वाज okay, just confirm whether my slide is back on your screen. It is? Yes, ma'am. है ना? Okay, so as I said, mostly people felt stupid, confused and angry. Reason being कि जाहिर है जब कुछ पता ही नहीं है तो इतना ये इमोशंस आएंगे. But when I believe in my students believe in me. That's what I heard Sarah Anderson say. These are the 2 students who were in my media team, and they both had already worked with me, so they knew my way of working, and they went back to the class. They convinced them, saying ये एक creative process है. There's an echo. Please mute yourself for this. Yeah. So उन्होंने बोला कि ये क्रिएटिव प्रोसेस है हमारा, इसका टारगेट है विजुअल थिंकिंग, इसका टारगेट है कि हम इस तरह का काम करें. तो देन विद इन नो टाइम माय क्लास वाज रेडी. सो लेट मी, कैन यू ऑल हियर दिस? आर यू एबल टू हियर दिस? Yes. Honestly, the first thing which came to our mind was a big no when this assignment was introduced to us. We all went like, one more assignment from Saloni ma'am, and we really didn't want to do it. But we had no choice, so we started with our project. All of the group members, we sat down together and we started discussing like where to start from. And I remember like for 4 or 5 days, each of the group members were actually looking out for information about different OPEC countries, but we could not come to any conclusion. And it was really hard. Like we were so confused as to where to start the assignment from. Nevertheless, we continued to look for information to start writing a story, but yet again we were stuck on a point where we had to brainstorm ideas to depict such a negative topic like COVID in a positive and a comical way at the same time. Then our next thought was that how will we do this particular assignment in a virtual environment, as so many things were required to be done parallelly, right from selecting the characters, building scenes, and writing the storyline along with the dialogue. Talking about the challenges that we faced by the assignment, so firstly we had to research a lot about the different countries, and the right countries. But our storyline is so I think we took quite a few days in researching all of that. Apart from that, since we were looking to very sensitive topics, so it was very crucial for us to pick the right characters and the right backgrounds to base our story on. And thirdly, I think we were also trying to integrate non-local
issues within this story assignment. So, that was quite difficult for us to do. And lastly, I think the major challenge that we faced was we wanted to show domestic violence both against men and women. So, writing the story in such a way that, portrays both sides of the coin. So, I think that was the actual major challenge that we faced. The Comiclears Development Project was one of a kind experience, especially when you are weighed out with a bunch of assignments to address content. It helped us to plan and control our activities, virtual meetings, and other deadlines altogether. The research process was very illuminating one as it attracted our attention to some intriguing facts and statistics about different countries and their cultures. This assignment also helped us to increase our knowledge on various graphic designing tools such as Canva, Adobe Photoshop, etc. We were also able to increase our dialogue writing skills and our overall storytelling skills. All the group members are grateful to Saloni ma'am for providing such innovative assignments in our curriculum. And thanks to this assignment, we all were able to work on another similar assignment, which is currently in the 4th review of Emerald Publications. Okay. All right. So this is what, now did you see, जिस लड़की ने no बोला था, she actually became the leader of her group. And after the trimester was over in January, इसी ग्रुप ने मेरे साथ आफ्टर माय कोर्स वाज ओवर, अब तो ना मैं इनको पढ़ाने वाली थी ना कुछ भी था, तब भी ये 5 बच्चों ने मेरे साथ आगे बढ़ के और भी प्रोजेक्ट्स किए. और एमरल्ड पब्लिकेशन हमारे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट पब्लिकेशन माना जाता है अगर आपका कुछ वहां पर पब्लिश हो. और कॉमिक बुक केसेस बहुत ही आजकल नया है. और मैंने इसी एक असाइनमेंट से they got motivated, and even during exams they worked with me and we submitted to Emerald a work. and इसी एक प्रोजेक्ट से उन्होंने विजुअल थिंकिंग, रिसर्च, जो कि हमारा एजेंडा होता है सब्जेक्ट का, क्रिएटिव वर्क, ओरिजिनल थिंकिंग. कोविड मेड अस थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट एनीथिंग, जो हम कभी नहीं करते थे वो भी किया. तो सेल्फ इनिशिएटेड होना बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए. हर बार कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नॉलेज लेकिन चाहिए. तो एनिमेशंस तो चाहिए ही चाहिए, एवरीबडी नीड्स इट नाउ. मुझे उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये भी सिखाना था, स्टोरी टेलिंग भी सिखानी थी, उनको रिसर्च करना भी सिखाना था, उनको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाना था, उनको वर्चुअल वे ऑफ वर्किंग सिखानी थी. Time management में multitasking is taken as a very valuable trait, but I'm sorry to say multitaskers जिसके टैब बहुत सारे ओपन होते हैं, they unfortunately get lost in deadlines and many times unfinished रह जाते हैं उनके प्रोजेक्ट. तो मैंने इनको टाइम बॉक्सिंग सिखाया कि 10 days में हम ये अचीव कर लेंगे. और ऐसे 130 स्टूडेंट्स थे and therefore 5 and 6 के ग्रुप्स थे इनके रिसर्च. Now what did I do? I did not teach, but I mentored. तो जब ये इनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, मैंने पहले बोला जो भी नॉलेज ला सकते हो लेकर आओ, पहले जस्ट कम बैक विद दैट, जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट. उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले खुद होमवर्क करके आओ, देन आई विल मेंटर यू. तो एवरी 3rd डे मैं उनका मैंने रोस्टर बना रखा था. आई वुड गिव देम टाइम, वैसा टाइम जब वो फ्री होते थे और मैं फ्री होती थी. Not in the timetable classroom. We were not tied up with that. मैं उनसे तब मिलती थी जब मैं भी बिल्कुल मेंटली फ्री होती थी, और कई बार वो रात भी होता था 11 बजे, वो तभी फ्री, बिल्कुल फ्री मिलते थे. और हम आधे घंटे में उतना अचीव कर लेते थे जो शायद हम 3 दिन में नहीं कर सकते. So that was the level of productivity. So time boxing is what I taught them. And so this was a small story of a teacher who got totally rejected, who was not the conventional teacher, who taught for impact in the learning quotient, enhance the quality of the student. मैंने उनको better human being बनाया, उनको और sensitive बनाया towards issues like domestic violence or such topics, sensitive topics. So I was teaching them a subject? No. So don't teach your subject. Teach the value of the subject and teach humanity.
teach social good, teach compassion, because post-COVID classroom, you will have to focus more on that. Teach them how to deal with pain. Teach them how to talk about pain, and teach them how to solve the pain. You know, how to become a healing person, not a dealing person. You know, otherwise you'll end up only dealing with it. आप counselor के पास जा रहे हैं. Hundreds of counselors have emerged in business. Coaches have emerged in business. But teacher का जितना बड़ा रोल होता है लाइफ में शायद ही किसी का होता है. आज भी जो मैं हूँ वो मेरे स्कूल के टीचर्स की वजह से हूँ या पेरेंट्स ने जो सिखाया उसकी वजह से हूँ, है ना? So I have cut short my presentation. There were a few videos. That video which I would have showed you just now were the achievements which he has already spoken about. तो मुझे स्नेहा मैम has already shared, तो मैं वो नहीं शेयर करूँगी. But मैं ओपन करती हूँ इस सेशन को. I know कि already 1.5 घंटा हो गया है. But what did you learn about post-COVID teaching learning process through my example? Lead by example. That's the moral of the story. You can unmute and speak. So let's, Shivan sir, if you allow 10 minute या 15 मिनट कुछ interaction रख सकते हैं आप? No problem, you can go on. Okay. मैडम 1.5 घंटा पूरे प्रोग्राम के लिए था, आपके लिए तो कुछ भी मैम, anything. Oh my God, that's so sweet of you. आप बताओ, अब मैं स्टूडेंट से बात करूंगी. अब आप बताओ आपको कैसे टीचर पसंद आएंगे या कैसे टीचर आप बनना चाहोगे? Remember, topic was very simple, innovation and pedagogy. आपको एक और बात बता देती हूँ. शिवान सर, आपको मैंने एक इमेज शेयर किया था, आपको याद होगा. Can you share it on the screen if you have it? About innovation, when you do something new. Yeah, give me a moment. अगर आप वो शेयर कर सकते तो I think that would. हाँ, मैं बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ. Just give me a moment. हाँ, इस बीच में I think I'll ask some few people to talk to me. Please switch on your videos and talk to me. We can help you design. Like I told you, आप कुछ नया करना चाहते हो तो सबसे पहला C चाहिए courage. क्रिएटिव होने के लिए पहला तो आपको courage चाहिए कि आप कुछ नया करो और don't worry about what people will say. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. That's the biggest limiting factor. कि लोग क्या कहेंगे इसलिए हम नहीं करेंगे. छोड़ो ना, मत करो. आज अगर मुझे ये अचीवमेंट नहीं भी मिलते ना तब भी ये एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड लेट मी टेल यू, टू गेट एक्सेप्टेड एज अ पर्सन हु इज डिफरेंट इज नॉट इजी. बहुत फेस करना पड़ता है. तो डोंट वरी, योर एम्बेसडर्स आर योर स्टूडेंट्स. अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया तो आपके पास ओपन होंगे बहुत और अपॉर्चुनिटीज. So yeah, can you switch on the video and speak please? I would be happy to see some of your faces. उसको देख कर लगेगा मुझे कि आप ठीक फील कर रहे हो या आप बॉग डाउन हो गए मेरे भाषण से. Shivan sir is sharing an image which I shared with him a few days back, and it talks very much about. Can you all see what he shared? Hello, good afternoon, ma'am. Hello. Yeah. Good afternoon. शिवान, मैम जैसे शिवान से वो इमेज आपको मिला, आपके व्हाट्सएप पे होगा. नहीं, you have to just share that image with. मैं शेयर कर रहा हूँ. I'm sharing. हाँ, ठीक है. अब मैं सुनती हूँ. Somebody was saying something. Let me see who it was. जी, मैं डॉक्टर अशोक लोधा. आप लोग देख सकते हैं मैं जो शेयर कर रहा हूँ. Students, please reply yes and no. Like unmute and. We can see the poster. Yes. Okay, poster. Right. Wait. This one. हाँ, ये yes. आप ये ना व्हाट्सएप पे इनको शेयर भी कर सकते हो. सी व्हेन दिस इज द रियलिटी. मैं बता रही हूँ, क्रिएटिव होना आसान नहीं होता एक टीचर के लिए. नया रास्ता, नया तरीका डिवाइस करना, एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत होती है. एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा सोचते हैं वी शुड बी एक्सेप्टेड फॉर व्हाट वी आर डूइंग. रिजेक्शन होता है तो हम लोग सल्व करते हैं और फिर वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होने के लिए करेज की बहुत जरूरत होती है. पहले लोग आप पे हंसेंगे, मुझ पे भी बहुत हंसे, मेरी बहुत खिंचाई होती है. आई एम डिक्लेयर्ड एज अ पुअर टीचर, बैड टीचर, व्हाटएवर. लेकिन उसके बाद वो लोग आपको चैलेंज भी करेंगे. अच्छा दिखा दो क्या करके दिखाते हो, जरा हम भी देखें. लेकिन एक स्टेज आता है जब
आपके जो एंडोर्स, जब आपको ज्यादा से ज्यादा लोग वैल्यू करने लगते हैं, उनको भी एक दिन आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ता है, जो आपको पहले रिजेक्ट कर रहे थे, है ना? तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट डोंट वरी, बट यू बिकम एन एग्जाम्पल, एंड देयरफॉर शिवान सर एंड रिया सर एंड सुचेता मैम एंड अदर्स, दे ब्रॉट मी इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इट टू एवरीबडी, राइट? तो थैंक यू शिवान सर, आप ये इमेज इनको शेयर कर सकते हैं। प्लीज डू समथिंग न्यू, वरना लोग बोर हो चुके हैं। लोग वही पीपीटी, वही वीडियो क्लास में ले जाकर पढ़ाना, लोग बोर हो चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग, आप उनको करवाओ, कुछ क्रिएट करवाओ, आप वीडियो ब्लॉग बनवाओ, आप ब्लॉगिंग करवाओ, आप पॉडकास्टिंग करवाओ। मेरे बच्चों के पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हो रहे हैं अभी। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव पब्लिश्ड पॉडकास्ट। मुझे उनको वॉइस ट्रेनिंग देनी थी, क्योंकि ऑनलाइन में अब इतना ही दिखता है, और कई बार आप वीडियो, आप शिवन से म्यूट कर ले प्लीज, एंड यू कैन स्टॉप शेयरिंग आल्सो, है ना? जो आजकल प्रेवलेंट प्रैक्टिस है, लोग सुन ज्यादा रहे हैं, लोग 2-2 मिनट, 1-1 मिनट 30 सेकेंड्स की चीजें पढ़ रहे हैं। वो लोग को लंबी बुक्स को, दे डोंट वांट दैट एनीमोर, राइट? तो या कैन मोहम्मद सर, सॉरी, अब आप बोलिए। शिवन सर, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। Yes, Mohammed ji, आप बोल रहे थे। Huda, he's our faculty member. Yes. Professor in charge for Urdu. Huda sir, आप आइए, बोलिए सर। Yeah, good afternoon, ma'am. कर लीजिए। Very senior professor. Thank you so much. Yes sir, please video on कर लीजिए। Yes sir, good afternoon, ma'am. नमस्ते सर, good afternoon. मैडम, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और जो भी बातें आपने कही वो बड़ा प्रैक्टिकल था। लेकिन हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशन में कि लोग प्रैक्टिकल ना होकर के थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाते हैं। नतीजा है कि बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं इस मामले में। Yes. तो हमने कहीं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार, बिल्कुल फ्रेंडली वातावरण में पढ़ा लिखा जाना चाहिए, ताकि उनके दिल में जो डर है वो डर न रहे। डर के बीच कभी भी इंसान सीख नहीं सकता। बहुत अच्छी बात बोली सर। जी। तो जो आपने कही ह्यूमैनिटी की बात कही, वो इसी में आता है। और लर्निंग बाय डूइंग का भी जो प्रोसेस है वो ऑफ कोर्स इसी तरीके से ही पॉसिबल है। अगर बच्चों से टीचर दूरी बनाएंगे, अगर कहीं उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम होगा, तो वो बच्चे कभी आपसे सीख नहीं सकते। आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही बोल रहे हैं सर। एक जमाना तब दूसरा था, जैसे हमारी जब पढ़ाई हुई थी वो वक्त अलग था, अब वक्त अलग है। आप घर में भी देखो, आपका माहौल बदल चुका है, पेरेंट्स दोस्त बन गए हैं, अब आप एक जैसे बिहेवियर रखते हैं, एक जैसी चीजें करते हैं, और आपके कॉन्वर्सेशंस भी अब बहुत बदल गए। पहले तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपने फादर के पास यूं चले जाएं और आप कुछ भी बोल ले या बोले चलो चलो हम लोग खेलते हैं। पहले कहाँ होता था, डिस्टेंस बहुत था, लेकिन अब नहीं है। इसलिए टीचर को अपने स्टूडेंट के मेंटल लेवल तक आना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन being a friend and being friendly are two things. एक दायरा आपको फिर भी बनाकर रखना है। Respect out of fear is a very wrong practice. डरा धमका कर आप किसी से कभी कुछ पा नहीं सकते। तो आप उनको बेशक you can create an environment where they are always happy. जैसे कि मैंने मेरी क्लास में देखा, थिएटर बहुत यूज करती हूँ, मुझे उनको अगर अच्छा बोलना सिखाना है तो मुझे पता चला कि एक लड़का बहुत अच्छी पोएट्री करता है, लेकिन उसका वैसे कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता था। तो मैंने उसको बोला कि तुम आज अपनी क्लास में पोएट्री सुनाओ। एक ने शायरी सुनाई, फिर मैंने बताया पोएट्री पढ़ना और शायरी पढ़ना कितना फर्क है, क्यों अलग, ये दोनों में इतना फर्क है। तो आप जब कॉर्पोरेट के सामने प्रेजेंटेशन दोगे तो वहां पे भी तो फर्क होगा, और इंटरव्यू भी जब अपने प्लेसमेंट के लिए दोगे वहां पे भी फर्क होगा बोलने का। तो हाउ टू स्पीक एंड हाउ मच टू स्पीक, वो डिक्शन, वो सब कुछ। तो जिसको जैसा स्किल है आप उसी को एज अ पेडागोजी लो। तो मेरे पेडागोजी में पोइट्री भी है, प्ले भी है, हिंदी वर्नाक्युलर भी है। मैंने तो दूसरे लैंग्वेजेस में भी क्लास में स्टूडेंट्स को एनकरेज किया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वो साउथ का था, वो हिंदी नहीं बोल सकता था, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, उसका इंटरपर्सनल मतलब कनेक्ट अच्छा नहीं हो पा रहा था। सो देन आई टोल्ड हिम कि आप अपना वीडियो वर्नाक्युलर में बनाओ,
उसके बाद आप उसको हमें ट्रांसलेट करके बताना। एंड दैट बिकॉज हम उसके जैसा सिखा रहे थे उसको, वो सीख गया, बेटर हो गया, और वो फिर आगे भी उसने दूसरी स्किल्स सीख लिए। थैंक यू सो मच हुदा सर। आपने जो बोला एक ही बात है सर, बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने कई तरह के समाज को देखा है सर। आज खुद देख रहे होंगे इंटरजेनरेशनल बॉन्ड, अब वो भी एक बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, वो डिस्टेंस को भी आपको कम करना है। तो ये यंगर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओल्डर जनरेशन को आत्मसात जो बोलते हैं ना, अपने साथ लेकर चले। तो आजकल डिजिटल नेटिव्स हम सब हैं, वी कांट डू विदाउट इट। तो आप अपने ग्रैंडफादर के साथ ही आप उनको ऐप सिखाओ और साथ में ही कुछ करो, तो दोनों का फैमिली के अंदर भी माहौल अच्छा होगा। तो वी कैन नॉट जस्ट थिंक अबाउट टीचिंग अ सब्जेक्ट। Teacher is no more just a teacher. Teacher is a mentor. Teacher is an idol. Teacher is a co-worker. Please become a co-worker. तो ये जब कॉमिक बुक प्रोजेक्ट हो रहा था, मैं उनके साथ काम करती थी, उनके साथ बैठकर काम करती थी, तभी वो सीख गए। मेरे कॉन्वर्सेशन से वो बहुत कुछ सीख गए। मुझे क्लास में लेक्चर नहीं देना पड़ा, पर वो सीख बहुत अच्छा गए। और आज इम्पैक्ट आप देख रहे हो कि आपने भी मुझे बुलाया और ग्लोबल लेवल पे भी मेरे एक्टिविटीज को, क्योंकि लर्निंग इम्पैक्ट बहुत अच्छी है। हमारे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स ही मेरे अचीवमेंट्स हैं। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई से प्लीज एज अ टीचर थिंक न्यू। प्लीज, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, उसी एज ग्रुप के लेवल पे उनको कैसा पढ़ाना अच्छा लगता है वैसे ही करो आप भी। और भी लोगों से सुन सकती हूँ, आई विल बी हैप्पी। So I don't want to say that it is a great success story because personally मैंने बहुत फेस किया as a teacher. मैंने as a colleague, not as a teacher. Teacher तो students तो मेरे साथ बहुत आ गए, उस शुरू में उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन आज पूरी फौज खड़ी है और हर दिन कुछ नया करने को तैयार है। वही कॉर्पोरेट में भी जाएंगे तो उसी स्पिरिट के साथ जाएंगे, राइट? लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी पीयर में, अपने पीयर के, अपने कलीग्स के बीच आसान नहीं था जगह बनाना। इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि शॉर्टकट्स होते हैं बहुत। फैकल्टी एग्जाम के पहले नोट्स दे देते तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ जाता है। और मैं इतनी देखा था, स्टूडेंट ने बोला था और एक असाइनमेंट, मतलब मैं लर्निंग बाय डूइंग का जो मेरा मेथड है, उसकी वजह से बच्चों को खुद से बहुत काम करना पड़ता है। रेडीमेड उनको कुछ नहीं मिलता। मैं कभी भी हैंड होल्डिंग नहीं करती हूँ। और ये मेरे मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, 20 स्कूल के हैं। तो आप अपने स्टूडेंट से कितना करवा सकते हो, उनका क्या स्टैमिना है। साथ में ये भी देखना है कि कोविड के बाद लोगों का हेल्थ भी डाउन हुआ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इम्यूनिटी। तो आप उतना ही उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने चेयरपर्सन को बोला कि 9-8 घंटे बच्चे क्लासेस में थे, मेरी क्लास में नहीं लूंगी, लेकिन मैं मेरे बच्चों से मिलूंगी जब वो मेंटली फ्री होंगे। तो वो 11:30 बजे भी रात को हमने मीटिंग की और मैंने उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा बिताया जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट्स को भी देनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिव टीचर्स। एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा। 10,000 बल्ब फेल हुए तब जाकर आज एक से बढ़कर एक लाइट्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम अदर्स। ओके, जस्ट वन मोर थिंग, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट आप अपनी क्लास में डिजाइन करो, फाइंड पीपल हु विल एंडोर्स यू। जैसे कि जब मैंने किया तो वर्ल्ड के बहुत नामी टैलेंट एक्विजिशन गुरु हैं मिस्टर अभिजीत भादुरी, जो एक समय टाटा स्टील में भी रह चुके हैं, चीफ लर्निंग ऑफिसर है विप्रो के। उनके मैं पढ़ती रहती थी, उनके ब्लॉग्स, उनके बुक्स। तो मैं उनके बुक रिव्यू कर चुकी थी, तो मेरा एक रैपो बन चुका था उनका लिंक्डइन के थ्रू और मेल्स के थ्रू। उनकी बुक आई थी तो मैंने बुक लॉन्च करवाया, एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। तो मैंने उनसे शेयर किया कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया है। तो इंडस्ट्री का कोई उस लेवल का, उसने आपको एंडोर्स किया कि यस सलोनी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी डूइंग दिस। तो मेरे इर्द गिर्द लोगों को चुप होना पड़ा, क्योंकि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो मैं कर रही हूँ। मेरे बच्चे आगे इंडस्ट्री में ही जाने वाले थे। साथ साथ यूएई के एक प्रोफेसर हैं, अगेन ही इज एन इंडियन,
वो मेरे मेंटर है रिसर्च में, तो मैंने उनको शेयर किया कि मैंने कॉमिक बुक प्रोजेक्ट किया है, आपको बताती हूँ। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि एमरल्ड के लिए तैयार करने का टाइम बस 10 दिन है, कर पाओगे तो अपने स्टूडेंट्स को बोलो करें। और हम लोगों ने किया और हम लोगों ने अचीव किया। So that's the reason why I say have some people who are your advisors, who are let's say from academics, from organization जहाँ आपके स्टूडेंट जाने वाले हैं। तो कोई प्रिंसिपल होगा, कोई एजुकेशन में बहुत नामी कोई होगा, उनका ट्रस्ट डेवलप करो, उनके साथ अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करो, फिर क्लास में उसको रन करो, उसका इम्पैक्ट शेयर करो लोगों के साथ, तब आपको फिर देखना एक्सेप्टेंस कैसे बड़ी आसानी से मिलने लगेगा। बिकॉज यू वोंट टॉक, others will talk about you. That was one part of my presentation जो मैंने skip कर दिया. That's why वो endorsements हैं industry के और senior academicians के. Yeah, that's about it. I'm sorry मैंने बहुत बोल दिया. Shivan sir, Suchita ma'am, anybody? Yeah, students, if you have any questions or you want any explanation, you can please unmute your phone or your microphone and you can ask question directly. कोई भी अगर किसी भी तरह का भी सवाल है तो participants, students, teachers, कोई भी, you can come and communicate. पहली बात तो forget 2019 तक जो आप थे ना, वो आपको बिल्कुल भूलना पड़ेगा। अब आपको 2021 ऑनवर्ड्स एक नया अवतार लेना पड़ेगा। That won't work what worked until 2019. It won't work again. Forget it. Olive, I think. Olive Tigga. Okay, I can see some people. Jagdish. Subui ma'am is a faculty, I believe. Pinky, Damayanti. ओके, सो शिवान सर ऑलरेडी हम लोगों ने इनको बहुत शायद टायर्ड कर दिया, तो do I have some queries? You can always reach through email or phone or anything that I can do for all of you. I'll be always ready to help you out. It was excellent, ma'am. Sandhya ma'am, thank you so much. Excellent session. Actually, I also believe in experiments and doing something new, searching new ways of teaching, learning. So that is why I liked. Thank you, ma'am. I can share samples of the comments. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स ने ना एप्स के थ्रू भी कार्टून बनाए और हैंड जिनको ड्राइंग पसंद था उन्होंने हैंडमेड कार्टून स्ट्रिप्स भी बनाए, तो उनका अपना हीलिंग हुआ बहुत, क्योंकि उनकी अपने आर्ट को भी जगह मिली, लोग अप्रिशिएट किए। सो अप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस आल्सो वाज इनकलकेटेड। तो आप लोग इसको डॉक्यूमेंट करें। मैंने सबसे पहले यही अब सीखा है कि आप जो भी करें उसको डॉक्यूमेंट करें। आप जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्लीज डॉक्यूमेंट इट, ट्राई टू पब्लिश सम रिसर्च ऑफ इम्पैक्ट एंड और कॉन्सेप्चुअल पेपर जर्नल्स में। अब आप इन छोटे ब्लॉग्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो, मैगजीन्स में, कुछ भी करो, लोगों को अब आप बताओ कि टीचिंग कैन ऑल्सो बी दिस वे। सीक फीडबैक, कभी उनको अच्छा लगेगा, कुछ क्रिटिसिज्म आएगा तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग, जर्नलिंग, ऑल ऑफ यू। तभी हम भी सीख पाएंगे ना। आप लोग कहीं ना कहीं इसको वीडियोस बनाओ या लिखो, आप लोग उनको शेयर करो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, एंड गेट फीडबैक। यस मैम, it's needed. Impact stories are also good for your branding, for your institute branding, your personal branding. Today suddenly in my teaching space everybody knows me because they know कि ये कुछ अलग कर रही है, नया कर रही है, डिफरेंट कर रही है। तो लोगों को अब मेरा नाम याद है और वो दे रीच आउट टू मी। मैं रिसर्चर नहीं हूँ, मैं रिसर्च में बहुत अच्छी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे दूसरे हायर इंस्टीट्यूशन they are calling me in advising roles or teaching roles or like that. तो branding होती है ना, आपकी इंस्टीट्यूट की भी branding होती है, आपकी भी होती है। Wonderful.